السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، ضلع غربی کو 3 ٹاؤن میں تقسیم کیا گیا ہے، اورنگی ٹاؤن، منگو پی ٹاؤن، مومن آباد، اور ٹوٹل آبادی تقریباً 30 لاکھ سے زائد ہے۔ آج ہم بات کریں گے ضلع غربی کے جو رہائشی ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کا حل کس کے پاس ہے یا ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا جس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ پروگرامز کا وہ سلسلہ ہے جس میں ہم کراچی کے ٹاؤن چیئرمینز کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے ان کے علاقوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جو عوامی جو مطالبات ہوتے ہیں یا عوامی جو شکوے ہوتے ہیں وہ ان کے گوشے گزار کرتے ہیں تاکہ انہیں ان چیزوں سے اویئرنیس ہو اور وہ ان کا حل نکال سکیں۔ آج جو میرے ساتھ میرا پینل موجود ہے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ حاجی جمیل ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین اورنگی ٹاؤن ہیں اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ضلع غربی کے جنرل سیکرٹری ہیں، جبکہ ملک عارف اعوان صاحب بھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور چیئرمین مومن آباد ان کا عہدہ ہے، اور پی ٹی آئی سے بھی ان کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے بھی رہنما حاجی نواز بروئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، چیئرمین منگو پی ٹاؤن، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ایم کے ایم کے رہنما سید اعجاز الحق بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ یہ آج کا پینل ہے جن سے ہم بات کریں گے۔ تمام مہمان کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کا گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی حاجی جمیل ضیاء صاحب آپ سے۔ السلام علیکم حاجی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو ہمارے کراچی کے رہنے والے ہیں، شہر قائد کے رہائشی جو لوگ ہیں، انہیں بڑی تکالیف کا سامنا ہے۔ آپ کے پاس چیئرمین اورنگی ٹاؤن آپ کا عہدہ ہے اور ایک بڑا عہدہ، بڑی ذمہ داریاں ہیں، عوام کی خدمات کے لیے بڑے پرعزم ہے، پیپلز پارٹی بڑی پرعزم رہتی ہے عوام کی خدمات کے لیے۔ آپ نے اپنے جو علاقے کے مسائل ہیں جن کا میں ابھی ذکر کر رہی ہوں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، کھلے نالے ہیں، تجاوزات ہے، قبضہ مافیا ہے، کچرے کے ڈھیر ہیں، گیس نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، بجلی نہیں ملتی، اور بڑے سارے مسائل ہیں، عوام کو تحفظ کا جو احساس ہے وہ بھی نہیں ہے۔ کیسے نبٹتے ہیں آپ ان مسائل سے؟ ہم تو نام لے لے کے پوری لسٹ آ گئی ہمارے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج دو ٹوک میں آپ نے جو ہے ہمیں مدعو کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں میرا جو گھر ہے وہ اورنگی ٹاؤن ہے، میری پیدائش وہاں کی ہے۔ اچھا، اور میں وہاں کا مقامی ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو وہاں کے مسائل سے بنیاد سے واقف ہیں نا، آپ روٹ لیول سے آپ کو ہر چیز پتہ ہے۔ بالکل، تقریباً جو ہے سمجھ جائیں کہ 40-45 سال ہو گئے۔ اچھا، ماشاءاللہ، زبردست، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے جو مسائل کے حوالے سے کہا ہے، تو اورنگی ٹاؤن میں جو ہے ہمارے جو ہے تقریباً جو ہے ہمارے اسٹرکچر نظام جو ہے بالکل تباہ کنال ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کا میں سٹی ایریا کا پریزیڈنٹ جو ہے تقریباً 13-14 سال چلا ہوں، اور جو ہمارے سی ایم صاحب سے اس سے پہلے جو ہے قائم علی شاہ صاحب تھے وزیر اعلیٰ سندھ، تو میں نے ان سے جو ہے خصوصی فنڈ لے کر جو ہے تقریباً جو ہے 2016 میں جو ہے میں نے جو ہے پانی کا اورنگی میں کام کروایا۔ اچھا، ہمارے بنیادی جو مسائل ہیں نا، سب سے پہلا جو ہمارا اہم ایشو ہے وہ ہے پانی کا، اور ہماری جو ہے آپ کو بتاؤں کہ اورنگی میں جو بنیادی جو کام ہے وہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کا مثال میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ آج جو وہاں لائٹیں جو جل رہی ہیں، جو پول لگے ہوئے ہیں، وہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لگا ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی اور مرحوم ہمارے آفاق خان شاہد صاحب نے کروایا۔ وہاں جو کچی آبادی میں لیز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کروایا گیا ہے۔ گیس جو آج جو وہاں ہے وہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں آپ کو بتاؤں، پہلے موٹر نظام نہیں تھا، ٹھیک ہے، میں چھوٹے سے بڑا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے پانی جو ہے مسلسل جو ہے آتا تھا۔ اچھا، آپ کا تو مسئلہ اس لیے بھی آپ کو سہولت ہے کیونکہ گورنمنٹ ہی آپ کی 15 سالوں سے ماشاءاللہ سے سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے، تو آپ کو تو مسائل کا سامنا کم کرنا پڑتا ہوگا اپنی بات کو کہنے میں۔ ملک اعوان صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ ملک عارف اعوان صاحب، آپ مومن آباد میں چیئرمین ہے، آپ کے پاس چیئرمین شپ ہے، آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہی وہ بنیادی مسائل ہیں جن کو عوام کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پا رہے، یا ان سے بھی بڑے مسئلے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اچھا مسئلے تو دیکھیں پوری کراچی میں، ٹھیک ہے. اب میں وہیں سے 2018 سے 23 میں MP کا الیکشن بھی لڑا، ہم تھے، فیصل واڈا تھے، اب لاسٹ بھی میں وہیں سے مطلب الیکشن لڑا، اور حافظ نعیم صاحب سے ہمارا مقابلہ تھا، لیکن فارم 45 کا میں MNA بھی ہیں، اور پھر یہیں سے ہم بلدیات کے الیکشن بھی لڑے، تو اللہ نے عزت دی یہاں سے بھی، اور 2024 کے الیکشن میں ہمیں دی. تو ہمیں تو پوری کراچی میں مسئلے ہیں. دیکھیں جو آج پچھلے کئی سالوں سے جو یہاں گورنمنٹ کر رہے ہیں، کوئی کئی سال سے یہاں جو بلدیاتی ادارے دیکھ رہے تھے، اور جیسے بھی میرے جمیل بھائی نے باتیں کی، سیم اسی طرح مطلب یہی مسائل ہے. اور اس ٹائم مسائل سے جو سب سے زیادہ جو ڈپارٹمنٹ کا مافیا ہے نا، وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ جمیل بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہٹانے، مطلب ہم اور میں بھی کر رہا ہوں. اور ہم ڈسٹرکٹ کے اندر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سندھ چلے جائیں نا، سندھ، تو اس ٹائم ہمارے ڈسٹرکٹ ویسے سندھ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. میں کیونکہ آؤٹ آف سٹی بھی جاتا رہتا ہوں، پنجاب بھی دیکھتا رہتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اس ٹائم سندھ بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ویسے بہت اچھا ہے. اچھا اس ٹائم ہمارے پھر جو ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ جمیل ڈیری صاحب بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، میرے ساتھ نواز بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے محدود وسائل میں جو ہمارے اتنی وہ نہیں ہے. اب کچھ ٹاؤن ان کے OGT شیئر بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی بڑے محدود وسائل میں اچھے کام کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم کر نہیں سکتے. اچھا کوشش آپ کر رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے ہیں، اس پر ضرور بات کریں گے. حاجی نواز بروئی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، چیئرمین منگو پیر ٹاؤن ہے، تعلق پیپلز پارٹی سے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم نواز بروئی صاحب. وعلیکم السلام. الحمدللہ نواز بروئی صاحب، اللہ کا بڑا احسان ہے، مشکلات میں جی رہے ہیں، شکایات کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، آپ سنیں تو بڑی اچھی بات ہے. اگر ان مسائل کا حل کر دیں تو مافیاز بہت مضبوط ہیں. کون سرپرستی کر رہے ہیں ان مافیاز کی کہ چیئرمین بھی آ کے یہاں پہ شکایت کر رہے ہیں کہ مافیاز مضبوط ہیں؟ مطلب کیسی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کروں گا اور آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اچھا مافیا کے حوالے سے جو ہے، اب مافیا ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، جو کہ جس طرح آج میں واٹر بورڈ سے شاہدہ رحمانی کے تھرو ایک اسکیم ہم نے اپروول کرائی جو کہ معمار کے سراؤنڈیڈ گھوٹوں کا ہے، تو وہاں ہم کام شروع کرانا چاہا تو وہاں کام ہمارا روکا گیا. تو اس طرح کی مافیاز ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہے، اور خاص طور پر منگو پیر کے حوالے سے میں بات کروں گا. منگو پیر جو ہے اولڈ ایریا ہے، اور بلال بھٹو صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں نے وہاں بھی یہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ منگو پیر جو ہے اولڈ ایریا سٹی ہمارے کراچی کا جو کہ بہت بیک فٹ میں ہے، اس کے لیے جو ہمارا ایک مین ایشو ہے منگو پیر روڈ، تو وہ جو ہے مسئلہ کشمیر بن گیا ہمارے لیے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، نہ منگو پیر روڈ بنتا ہے نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہی مافیاز کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے؟ تو ادارے تو آپ ہی کے ہیں نا سر جی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا 17-18 سالوں سے. دیکھیں ادارے، میئر بھی آپ کا ہے، ڈپٹی میئر بھی آپ کا ہے. اچھا الحمدللہ میئر ڈپٹی میئر اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر منگو پیر ٹاؤن کے حوالے سے میں بات کروں گا. میں شکریہ ادا کروں گا اس پارٹی کے اعلیٰ قیادت کا اور میرے کراچی مصطفیٰ صاحب کا کہ انہوں نے اس وقت جو ہمارے ایشوز ہیں، مین روڈوں کے جو ایشوز ہیں، وہ ہمیں اسکیمیں دی ہیں پر یو سی 100 ملین پر یو سی اسکیمیں ہماری آ رہی ہیں ADP کے تحت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ادارے ہیں ان کو بھی ہم نے لگام ڈالنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہاں پر جس طرح میرے دوستوں نے کہا کہ مافیاز موجود ہے، وہ مافیاز جو ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ماضی میں کس طرح کراچی کے ساتھ کیا حالت تھی کراچی کی. اس مافیاز کے خلاف بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے علاقے کے جو پسماندگی ہے، جو پریشانی ہے لوگوں کی، ان کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ تمام کوششیں کریں، اس سے تو عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. جمیل ضیاء صاحب اچھی بات ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ کوشش کریں. آپ نے کہا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کی فراہمی کا، عدم فراہمی کا مسئلہ ہے. میری ریسرچ کے مطابق ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں. قبضہ مافیا بہت ایکٹیو ہے. جب ہم مافیاز کی بات کرتے ہیں تو قبضہ مافیا کا نام لیے بغیر تو مافیاز کا جو بینچ ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا. بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور خاص طور پہ اورنگی ٹاؤن میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر بڑے زبردست آپریشن ہوتے ہیں اور اکثر ہوتے ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں جن سے تھوڑا سا یا تو وہ نظر انداز کر دیے جاتے ہیں یا پہلو تہی کر لی جاتی ہے. کیا وجہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کن مشکلات کا سامنا ہے؟
देखिए ये सबसे जो अहम इशू है, मैंने जो आपको पानी का कहा, और ये ज़मीनों के जो मामलात में जो कब्जा माफिया है ना, वो हमारे जो अदारे हैं ना, हमारे महकमे, हमारे या ये मुख्तार का टपेदार डीसी, उन सब के नॉलेज में है, और ये हमारे अदारे सब पे नज़र रखे हुए हैं। लिस्टें बन रही हैं, जो नाजायज़ काम करेगा वो हमारे अदारों से नहीं बचेगा, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस पे कार्रवाई होने वाली। जो कब्जा माफिया जो गरीबों के प्लाटों पे कब्जा करते हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू ये जो है मैं लाजमी आज कहूँगा कि इस पे जो है मैं तकरीबन 2013 से 12 से जो है मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरे पास प्रूफ भी है, मैं एंटी करप्शन में भी दिया हूँ, 12 साल तो हो गए आपको आवाज उठाते हुए, काम कहाँ हुआ? सुने ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस पे मैंने रुकावट किया है। अब जैसे आपको मैं बताऊं कि मैं अपने ही टाउन में जो है मेरे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठते हैं, रिजवान अहमद हमारे पीडी थे, वो जब मैंने एज ए जो है टाउन चेयरमैन हल्फ उठाने के बाद जो है मैं अपने ऑफिस से शाम को चला गया था, मुझे एक आम इंसान, आम पब्लिक ने फ़ोन किया कि आपके ऑफिस में रात के टाइम में 32,000 गज कच्ची आबादी का लीज हो रहा है। तो मैं ऑफिस में पहुंचा हूं तो वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, वो 2 दिन जो है पूरे कराची में टॉप 10 पे चला है। अच्छा। तो वो मैंने फाइलें वगैरह जो है वो उठाई, और मैंने अपने सीएम साहब मुराद अली शाह साहब से, मेयर कराची, उनसे बाकायदा मैंने रिक्वेस्ट किया, और वो जो है उनको भेजा भी मैंने, और उसके बाद उसको हटाया भी गया। तो समझ जाए कि इस तरह के जो है कामों में जब तक हम जो हैं और हमारी पब्लिक हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं करेंगे तो वो नहीं हो सकता। जैसे आपको अभी बताऊं कि पिछले 2 साल पहले की बात है कि हमारे औरंगी में स्पोर्ट कम्प्लेक्स का कोई जगह नहीं है। ठीक है। वो वाहिद एक स्पोर्ट कम्प्लेक्स का जगह जो 2004 में जो है उसको जो है अप्रूव किया गया, और उसके लिए जो है वो उसकी बुनियादें रखी गई। लेकिन अभी 2 साल पहले उस पर जो है चंद कब्जा माफिया ने जो है, यही पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे उस टाइम रजा अब्बास रिजवी थे, अच्छा, उन्होंने जो है 55 लाख रुपए लेके जो है उसको चालान दे दिया। हालांकि वो जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की जो है तकरीबन 15-20 करोड़ रुपए का। अच्छा। अब गवर्नमेंट का 2004 में उस पे जंग एक बार में उसका जो है इश्तेहार आया, टेंडर हुआ। सुने, मैं आपको बता रहा हूँ तफसील। टेंडर हुआ, उसमें जो है गवर्नमेंट का जो है तकरीबन जो है 32 लाख रुपए लगा हुआ, बुनियाद मौजूद है, उसमें कितने गेज का सरिया लगा है, सीमेंट लगा, बजरी लगा स्पोर्ट कम्प्लेक्स के लिए। ठीक है। लेकिन मैं वाहिद वो शख्स जो है, मैं कोर्ट पे गया हूँ, हाई कोर्ट पे, और हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। मैं अपने औरंगी के आवाम के लिए जो है ये कब्जा माफिया के खिलाफ ये तकरीबन जो है 2 साल हो गए। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला उसमें आखिरी मराहिल में या अभी चलेगा 2-4 साल? आखिरी मराहिल पे है। अच्छा। और वो जो है किसी सूरत में जो है वो नहीं ले सकते हैं, वो हमारे औरंगी के बच्चों के स्पोर्ट कम्प्लेक्स का जगह है, वो हमारे बच्चों के लिए है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। मलिक आरिफ अवान साहब, तजावुज़ात के खात्मे के लिए आपके इंतज़ामिया क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? मोमिनाबाद में आपको इन मसाइल का सामना है, तजावुज़ात का और कब्जा माफिया का? हमारे पास वैसे मेरा जो टाउन है बड़ा पसमानदा है, उसकी बंदे टाउन से दूर शुरू होती है और कटी पहाड़ी तक आती है, और अड्डे के लिहाज से मतलब कच्ची आबादी औरंगी, पहले तो औरंगी सी वो कटी पहाड़ी तो बड़ा मशहूर है। वो मेरी बॉर्डर लाइन है, पर वो थोड़ा सा टुकड़ा मेरे पास एक अच्छा। 2 वार्ड और बाकी फिर मंगो पीर सेंटर में चला जाता है। और अब मेरे पास कोई ऐसी चाइना कटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा। जो पहले अमन की वो सूरत हाल वो सही हो गई। बहुत खराब है वहाँ, मतलब स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा तो एक तो जैसे क्यों है स्ट्रीट क्राइम, क्या वजह? देखो हम नहीं कर सकते ना, देखो हम अगर एक एसएचओ को फोन करते हैं, अब मैं इससे अपनी बात करूँ, पीटीआई से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो अगर मैं किसी एक एसएचओ को फोन करता हूँ, वो अगर मुझे फोन करता है, अगर हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन कार्रवाई करते हैं तो उसके पीछे कोई, जिसके खिलाफ, देखो मैंने आपको पहले कहा कि माफिया है, हर चीज के पीछे एक माफिया है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एसएसपी या डीआईजी को फोन कर देता है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, अभी जैसे मैं सियासी प्रेशर आ रहा होता है। बिल्कुल आता है, सियासी प्रेशर होता है, कोई ना कोई उसके पीछे माफिया सिस्टम होता है उसके पीछे, जिसको एक सिस्टम का नाम दिया जाए। तो इसके अलावा देखिए जैसे जमील भाई बात कर रहे थे कि इनकी अपनी गवर्नमेंट है, और देखिए ये खुद कितने कह रहे कि मैंने पीडी की खिलाफी की, और बाकी वीडियो बड़ी टॉप 10 पे चली, मैं सही कह रहे हैं, और इसने अच्छा काम किया। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें भी इसको उल्टा डिपार्टमेंट ने या इसके अपने लोगों ने इसको डांटा होगा कि आप इस तरह नहीं करें, क्योंकि माफिया इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। तो मैं आपको इतना बता, इसके अलावा बड़े मसले हैं हमारे पास। आप मोमिनाबाद में क्राइम बहुत ज्यादा है, मंशियात बहुत ज्यादा है, और इस टाइम मतलब अब सबसे बड़ा पानी का मसला है, गैस का मसला है। अच्छा, के इलेक्ट्रिक इस टाइम सबसे बड़ी माफिया है। अच्छा देखें मलिक आरिफ अवान साहब, मसाइल तो इतने हैं कि पूरी लिस्टों की लिस्टें बिल्कुल ठीक है। आप एक ओहदे को होल्ड कर रहे हैं, आप अवामी नुमाइंदे के तौर पे वहाँ मौजूद हैं, अवाम आपके पास आएगी,
ठीक है, आपको रीच बिल्कुल, करेगी ना, बिल्कुल। भाई हमें क्या मसला है, गैस नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है हमारे पास 2 दिन से, आपके पास आती है, आप क्या करते हैं? आप सिर्फ आवाज उठाना एक अलग बात है, आप उस मसले को हल करने के लिए अमली इकदाम। देखो मैं आपको इस टाइम माजरत के साथ, इस टाइम हम जितने भी टाउन चेयरमैन है ना कराची के 25 टाउन चेयरमैन है, माजरत के साथ इस तरह जैसे मेयर साहब के इख्तियारात मिले ना, इस तरह अभी तक हमें नीचे इस तरह इख्तियार डिवाइड नहीं है, नहीं है हमारे पास, नहीं है। देखो वाटर एंड सीवरेज का नहीं है, हमारे पास सेंट सॉलिड वेस्ट का नहीं है, सेंट सॉलिड वेस्ट इस टाइम इतने बुरे हालात हैं। आप देखें कि पिछले 2 महीने से कराची में डेंगू तो आप और ये तो चिकनगुनी बीमारी, आप यकीन माने आप, और ये निकला कहाँ से? कराची से, ये डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से निकला, वेस्ट में आया और इस टाइम पूरी कराची में छा गया। और वजह क्या है कि सेंट सॉलिड वेस्ट ने क्या किया है कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया, कोई चाइनीज कंपनी है। आप यकीन माने कि उनके बंदे जो एमडी लेवल के बंदे हैं और जो जीएम लेवल के बंदे, और टाउन चेयरमैन का फोन उठाना गवारा नहीं करते हैं, मतलब मशीनरीज नहीं है, मतलब 13 करोड़ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के उसको हर महीने उसको पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि वो पैसे कहाँ जाते हैं, 13 करोड़ पे किसके जेबों में जा रहे हैं। जमील जार डेयरी भी मतलब बहुत एफर्ट करते हैं, मैं हाजी नवाज बरोई भी मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट के, वो भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो पैसे कहाँ जाते हैं और कहाँ की सफाई होती है। आवाम को कुछ भी नहीं मिला। आवाम को देखो, मैं माजरत के साथ, मेरे पास आज तक भी यकीन में मुझे इतना अफसोस होता है कि मैं एक टाउन चेयरमैन हूँ और मेरे पास आज भी जो लोग आते हैं, पता किस काम के लिए आते हैं? वो मुझे ये नहीं कहते कि मलिक साहब यहाँ स्कूल बना लो, ये नहीं कहते आप यहाँ पार्क बना लो, ये नहीं कहते डिस्पेंसरी, पता किस लिए आते हैं? कि हमारी गली की गटर लाइन ढकने, आज तक सफाई के लिए आते हैं। और मुझे यकीन में इतना शर्म आता है कि यार ये काम तो एक कौंसल के हैं, ये काम तो एक यूनियन के चेयरमैन के हैं। अब टाउन चेयरमैन के पास आओ बड़े काम के लिए। मैं यकीन मानो, मैंने अपने मेयर ने जब से चार्ज लिया, मेरा बहुत बड़ा बुरा हालात थे टाउन के, लेकिन मैंने वहाँ पार्क बनाए, स्कूल बनाए, अच्छा, अच्छे बिल्कुल इस पर बात करेंगे, हाजी नवाज बरोही साहब से भी बात करेंगे। और बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये टाउन चेयरमैन के साथ बात करके, मुझे इनकी बेबसी पे अफसोस हो रहा है कि एक ओहदा है लेकिन इख्तियारात नहीं हैं, और अगर इख्तियारात हैं तो वो महदूद हैं, या जो आवाम के मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि क्या करें, अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है एक ओहदेदार। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ तीनों टाउन चेयरमैन मौजूद हैं ज़िला गरबी के, और बात हमारी जारी है। ज़िला गरबी के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि हाजी नवाज़ बरोई साहब से बात करेंगे। हाजी नवाज़ बरोई साहब, बताइएगा, क्या आपके टाउन में तालीम, सेहत या पार्कों की सहूलत है आवाम को? अच्छा, देखिए मैं आपको एक बार बताना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर, 2 बातें बताएं। नंबर 1 ये है कि हमारे यहाँ जुडिक्शन है मुख्तलिफ इदारों की, जिस तरह KDA है, MD है, LERP न्यू दिल्ली सेटलमेंट जो है जी, उसके साथ साथ फिर जो है खुदा की बस्ती साहिबान और LDA। तो हमारे से जो टाउन में हमें पार्क दिए गए हैं 100 से अबव है। अच्छा, लेकिन जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो इदारे किसी चीज को ऑन नहीं करते हैं, सिर्फ टैक्सेस वसूल करते हैं। ये कैसी बात है नवाज बरोई साहब? आप इदारों को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, इदारे आप ही की हुकूमत के हैं, और इदारे वाले कहते हैं कि टाउन चेयरमैन काम कर रहे हैं, लेकिन काम कहीं नज़र नहीं आता। आज भी CM साहब ने जो इजलास किया उसमें उन्होंने कहा कि कराची में जो तरक्याती काम हो रहे हैं फौरी तौर पर उनको टाइम फ्रेम के अंदर अंदर काम मुकम्मल किया जाए। फंड्स भी उन्होंने जारी कर दिए, इसी से पहले आप लोगों के फंड्स में भी इजाफा किया है। मतलब CM साहब तो कर रहे हैं काम, आप लोगों का काम नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए मैं आपको मंगूपीर टाउन के हवाले से बताऊं। मंगूपीर टाउन जो है ना, एक बड़ा वसी रकबे पे जो है 16 यूनिवर्सिटी पर मुश्तमिल है। बड़ा वसी रकबा है हमारा, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर। तो इतना बड़ा वसी रकबा टाउन का होना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, यानी इसमें 2-3 टाउन निकल सकते हैं। लाजमी 2 से 3 टाउन निकल सकते हैं, तो बेहतरी आएगी फिर। इसका मतलब है, मैंने आपको शुरू में बताया कि मंगूपीर में जो है ना, माजी में जो है जो ताकतवर गुजरे हैं इदारे, मिसाल के तौर पर मेयर गुजरा है कराची का, नाज़िम कराची, या फिर MNA MPS, तो इन मंगूपीर को जो है हमेशा इन्होंने नजरअंदाज किया है। अच्छा। अब मेन मंगूपीर मजार है, उनके इतराफ के जो इलाके हैं, उसके साथ साथ सरजानी का जो इलाका है वो डिपेंड करता है KDA पे।
KD स्कीम 41। अच्छा, उसके बाद मेमार का इलाका है। अब यहाँ पे एक अलमिया एक और है, मैं आपको बताऊं। जी जी, क्या यहाँ पे अलमिया? जो प्राइवेट सोसाइटीज है, जिस तरह आपका साइमा अरबियन सोसाइटी है, गुलशन मेमार सोसाइटी है, ये क्या करते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट चार्ज लोगों से लेते हैं और डेवलपमेंट का कोई काम नहीं करते। नंबर 2, यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे जो सोसाइटीज लॉन्च करते हैं वो सोसाइटीज को आधे में छोड़ के लोगों को समझ बाग दिखा के भाग जाते हैं। अब जब भाग जाते हैं तो जब वहाँ लोग रिहाइश करते हैं, जिस तरह आपका सरजानी में एक यूसुफ कोट में सोसाइटी है, तो वहाँ आज भी लोगों ने मुझे फोन किया कि भाई हमारे यहाँ मसाइल है, यहाँ मच्छरों का, दूसरी चीजों का अंबार है। मैंने कहा भाई आपका सोसाइटी है, उनकी कमेटी है, आप अपनी सोसाइटी कमेटी से राब्ता करें। उन्होंने कहा कोई है नहीं, उनका दफ्तर बंद है, वो भाग गए हैं। अब ये सारा मलबा जो है ना किसके ऊपर गिरता है? लोकल गवर्नमेंट, बल्दियात और टाउन चेयरमैन, इनके ऊपर गिरता है। लेकिन वहाँ पे जो मराज लेते हैं वो सोसाइटीज के मालिकान लेते हैं, लोगों से 15-15 हजार रुपया माना लेते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट चार्ज के। इसी तरह मेमार में आपने देखा होगा, माजी में हमारा एक बड़ा मामला हुआ वहाँ पे। सर आप क्या कर रहे हैं अपने टाउन के लोगों के लिए, ये बताइएगा प्लीज। देखिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो मसाइल हम हल करने की कोशिश करें। कौन सा मसाइल, कौन सा एक मसला बताएं जो आपने हल कर लिया हो? देखिए, सबसे ज्यादा इस वक्त हमारे पास मसाइल जो है वो सीवरेज के। ठीक है, सीवरेज के मसाइल हम हल करते हुए जा रहे हैं। गटर के ढक्कन नहीं होते, बच्चे गिर जाते हैं उसमें, बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। अच्छा, गटर के ढक्कन नहीं होते हैं, वो हम सीवरेज के मसाइल, जिस तरह इवेंट्स आते हैं, खासतौर पर रबीउल अव्वल का, मुहर्रम का, इस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं, वो मामला भी हम देख रहे हैं। हालांकि जुडिक्शन और चीजें दूसरे हल्कों की है, दूसरे इदारों की है, लेकिन उसमें जो है ना लोगों के साथ ताउन करना, वहाँ पहुंचना, लोगों को मुंह देना, क्योंकि एक टाउन चेयरमैन है या यूसी चेयरमैन है, वो हर टाइम हर वक्त अवेलेबल है अपने ऑफिस में, ग्राउंड पे। एक इदारे का जो है अफसर है, वो डीजी है या कोई अफसर है, वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। तो लोगों की तवक्कुआत है टाउन चेयरमैन से, यूसी चेयरमैन से, कि वो जो है हमारे मसाइल हल करें। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि जुडिक्शन टाउन की क्या है, केएमसी की क्या है, केडी की क्या है और एमडी की क्या है। लोग तो ये चीज नहीं समझते हैं। हर एक की बाउंड्रीज हैं, हर एक की बाउंड्रीज है। ठीक है, लेकिन हम तमाम बाउंड्रीज क्रॉस करके हम काम कर रहे हैं। इस वक्त एलडीएबी का काम हम कर रहे हैं, एमडी का काम भी हम कर रहे हैं। जिस तरह बारिशों में हमने मेमार में जो है ना हमने काम किया। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें बहुत ज्यादा काम नजर आने वाला है। इंशाल्लाह मंगूपीर टाउन के हवाले से मेरे नेक ख्वाहिशात हैं, बड़े काम मैंने वहाँ स्कीमें दी हैं, काम चल रहा है वहाँ पे मंगूपीर टाउन में। खासतौर पर जो है ना सीवरेज और लोगों के जो इश्यूज हैं, पुलिये हैं जिस तरह टूटे हुए हैं, जो कि 40-40 साल बाद जो है ना वहाँ पे 22-22 साल जो है नालों की सफाई हो रही है, जो तारीख में पहली दफा हो रही है जब से बनी है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है नवाज बरोई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उस पोस्ट पे हैं ही इसीलिए ताकि आप मसाइल हल करें। जमील ज़िया साहब से भी बात कर लें। जमील ज़िया साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है कि 30 लाख की अप्रॉक्स आबादी है ज़िला गरबी की, 35 से 40 लाख की आबादी है हमारी। हाँ। और हमारी जो है यूनियन कमेटी जो है वो लाखों पे जो है वो जो है बनाया गया है। ठीक है। हालांकि पूरे कराची में जो है 40,000-42,000 पॉपुलेशन पे है। ठीक है। और हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत गुंजान आबादी है, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है औरंगी टाउन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल्स कितने हैं इस जिला में? इस जिले में हमारे जो टीएमसी की जो स्कूल है वो तकरीबन हमारे पास जो है 29 स्कूल है। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो पार्क्स की तादाद भी जो है तकरीबन जो है 18-19 जो है पार्क्स हैं, जिसमें अभी पिछले दिनों ही जो है हमारे जो है मेयर साहब ने जो है मुर्तजा वहाब साहब ने 15B में जो है एक बहुत ही शानदार पार्क बनाया है। आपकी डिस्पेंसरीज भी होती हैं? यस, ठीक है। आपकी लाइब्रेरीज भी होती हैं? ठीक है। कितनी डिस्पेंसरीज और कितनी लाइब्रेरीज? डिस्पेंसरीज हमारी जो है तकरीबन जो है 9 डिस्पेंसरीज है। और लाइब्रेरी नहीं है हमारे पास, एक लाइब्रेरी है। एक डिस्पेंसरीज का भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा हाल नहीं। देखिए डिस्पेंसरीज का जो है असल में बात यह है कि हमारे पास जो है ना उसमें डॉक्टर नहीं है ना। डॉक्टर की जो है वो जो है हमें असल जरूरत है, और वो हमने लेटर लिखा है कि हमें डॉक्टर दिया जाए और हम उस पर जो है काम करें। स्टाफ भी नहीं है, अमला भी नहीं है, इमारतों का भी बड़ा मखदूस हालात हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ क्लिप्स भी हमारे पास मौजूद है, ज़रूर वो भी शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मलिक आवान साहब से बात करेंगे। मलिक आरिफ आवान साहब, आप भी अपने दुख कुछ बता रहे थे, ज़रूर फरमाइएगा क्या किया आपने अपने टाउन के आवाम के लिए और क्यों नहीं कर पाए उनके मसाइल का हल? हमारे पास जितने वसाइल है ना, वसाइल के हिसाब से हमने तालीम को सबसे पहले हमने फोकस रखा फर्स्ट प्रायोरिटी पे। पार्ट्स जो हमें मिले 18-19 बिल्कुल खंडार तमाम मंशात भी थी। ठीक है, अच्छा मैं एक बात अपने नाज़रीन से शेयर कर लूँ। सैयद एजाजुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, MKM रहनुमा, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। आपसे बात करेंगे सर, लेकिन पहले जरा बात मुकम्मल हो जाए मलिक आरिफ आवान साहब की। जी मलिक साहब। अच्छा, हमें पार्ट्स जो मिले बड़े खंडार तमाम मंशात बिकती थी, मतलब वहाँ कोई रौनक नहीं, हमने वो पहले बिकती थी। हाँ, औरंगी के अंदर एक ही सबसे बड़ा हमारे पास पार्क है और वो उसको आप जाके देखें, बड़ा अच्छा हमने पार्क बनाया। अच्छा, हमने और जो डिस्पेंसरी, अच्छा डिस्पेंसरी हमारी हालत ऐसी थी कि डिस्पेंसरी पे कब्जा, किसी पे कोई डिस्पेंसरी हमारी दी गई थी, किसी एनजीओज को दी गई थी, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। कुछ पोलियो वाले को दे दिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक दो जो डिस्पेंसरी उनको अच्छा बनाया और अब इंशाल्लाह हम एक दो अच्छे किस्म के मॉडल ग्राउंड बना रहे हैं। और एक दो तो हमने बना लिए जो छोटे थे, जो हमने अपने बड़े मदूद वसाइल से बनाए, और अब एक दो हम बड़े क्लिक से कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी चीज़ें नजर आएगी। लेकिन जितने हमारे पास वसाइल होने चाहिए थे ना, उस तरह हमें वसाइल नहीं। हम मेयर साहब को बार बार, मैं सेक्रेटरी मतलब लोकल गवर्नमेंट को, मिनिस्टर साहब लोकल गवर्नमेंट को, सईद गनी साहब को बार बार उनको कह चुका हूँ कि आप हमें इन जगह पे नजरसानी करें। ये कराची का हिस्सा है, वेस्ट बहुत बड़ा जिला है, लेकिन मेरे साथ मेरे बाकी टाउन चेयरमैन जो मेरे कुलीग हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जोर लगा रहे हैं और बेचारे कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ चीज दी नहीं जा रही है। मतलब अच्छा। मेरा जो बड़ा पसमानदा मोहम्मदाबाद, मतलब सड़कों का हाल बहुत बुरा है, मतलब सीवरेज के निजाम बिल्कुल तबाह है, मतलब कोई चीज वहां नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं बेशक आप किसी भी वहाँ के MNS, मेरे वहाँ से MNS अमीनुल हक आप चेयरमैन का होता है, बाकी कुछ आप नहीं। वहाँ से मेरे पिछले टर्नओवर में जो हमारे साथ अमीनुल हक साहब थे, हमारे वो मिनिस्टर थे हमारी गवर्नमेंट के अंदर, हमारे IT के मिनिस्टर, और खान साहब ने उनको बड़े पैसे दिए, हर साल दिए। आप हमारे MNS को देख लें, उनको 15-15, 20-20 करोड़ एक साल के मिले और इनको 1-1 करोड़ मिला। इन्होंने क्या किया, हमारा क्या किया, हमें उस तरह चीजें नहीं दी जा रही टाउन में। और मुझे तो यकीन है, मैं तो कभी उस वक्त भी नहीं काम किया उन्होंने, 1-1 अरब रुपए नहीं, लेके काम भी? हमारे आने में, हमारे मोमनाबाद टाउन के अंदर नहीं। अगर उन्होंने औरंगी में कहीं किया तो जमील ज़ाहिर साहब को पता होगा, लेकिन मेरे नजर से कहीं नहीं गुजरा। जब हमारे लास्ट भी MNA थे 18 से 23 तक के, मुझे नहीं। क्यों जमील साहब, आपको पैसे मिले थे, आपके टाउन को काम हुआ था उस वक्त, उस दौर में? लेकिन वो जो है उस टाइम में पिछले के बाद में जो है एडमिनिस्ट्रेटर चल रहे थे और उस टाइम जो MNA MP जो थे वो MKM के थे, तो उस पे PTI के जो गवर्नमेंट में जो है मेरे मलिक आरिफ साहब ने जो कहा वो सही है। अच्छा, आपकी बात एजाजुल हक साहब सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो वो जी, जी। जो है वो MNA जो हमारे अमीनुल हक साहब जो हैं, क्योंकि मैं 2018 में जो है मैं खुद भी MNA का लड़ा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे टिकट मिला था, और उसमें जो है अमीनुल हक साहब जो है वो 2018 में जीत कर 5 साल जो है उन्होंने जो है गवर्नमेंट में रहे वो, और रहने के बावजूद जो है अभी जैसे मलिक आरिफ साहब ने कहा कि इनकी गवर्नमेंट थी, इनके वज़ीर-ए-आज़म थे PTI के, उन्होंने जो है अरबों खरबों रुपए उनको फंड दिए, लेकिन हमारा औरंगी में आपसे मीडिया की जो आंख है ना वो दूर तक जाती है। तो आप जो है विजिट करें, औरंगी टाउन खंडर है, अगर कुछ बना होता है ना तो देखिए, कुछ बना होता है तो बेहतर है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जितने गुजरे हैं, आज जो एज ए टाउन चेयरमैन हम बैठे हैं, हमें जो है लाइबिलिटीज मिला है 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का। आप ये बताएं ना, लाइबिलिटीज हमें जो DMC वेस्ट में अरबों खरबों रुपए जो आए वो कहाँ गए? अच्छा, हमें लाइबिलिटीज एजाजुल हक साहब को खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब। वालेकुम सलाम। एजाजुल हक साहब, आपने आपके भी मेयर रहे हैं, कराची के लिए बड़ा काम किया है, आपने बिल्कुल गुफ्तगू सुनी होगी जमील ज़िया साहब की। क्यों नहीं काम किया जा रहा? टाउन चेयरमैन इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मेयर पीपल्स पार्टी का, डिप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का, इसके बावजूद जो टाउन चेयरमैन है, भले वो पीपल्स पार्टी के हों, उनको शिकायत भी हैं और उनको वो मसाइल का हल नहीं कर पा रहे। क्यों? आपके ख्याल में क्या वजह है? नहीं, सबसे पहले बड़ा शुक्रिया कि आपने लाइन पे लिया और मौक़िफ़ अपना पेश करने का जो है वो एक मौका फराहम किया। जी। मैं बिल्कुल अपने जो दोनों भाई हैं, एक मलिक आरिफ आवान साहब हैं, दूसरे जमील ज़िया साहब हैं, मैं बड़ा इनका भी जो है वो तहे दिल से एहतराम करता हूँ, और एहतराम बल्कि ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने सच कहा कि ये मजबूर हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनन मैं इनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहूंगा
क्योंकि मलिक आरिफ अवान साहब जो मोमिनाबाद टाउन के टाउन चेयरमैन हैं, यकीनन वो मकामी है, यहीं रहते हैं। जमील दिया साहब है, वो औरंगी टाउन पे रहते हैं। अब बात ये है कि यकीनन इनकी नीयत पे शक नहीं की जा सकती। अब बात ये है कि मेरे भाई को, जमील दिया साहब को, ये बात इल्म नहीं कि 2018 पे अमीरुल हक भाई आए हैं, वो 5 साल रहे हैं, 15-15 करोड़ रुपए लिए। आज मैं जमील भाई को बता दूं कि औरंगी टाउन के अंदर छोटे मोटे जो भी काम होते हुए नजर आ रहे हैं ना, गलियां बनना, सड़कें बनना, वो उसी एमएनए के फंड से हैं। और मेरे भाई को शायद इल्म नहीं है, मैं उनको बता दूं इनकी इत्तला के लिए कि 18वीं तरमीम के बाद सूबा हर लिहाज से खुद मुख्तार है। अगर उनके इल्म में नहीं है तो मैं उनको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। जब सर मेरे इल्म में सब कुछ है। एजाज साहब मेरी सुन ले। अगर इंटरप्ट करेंगे तो मैं बात ही नहीं कर सकता। आप मेरी बात सुन ले, बात करने दे मुझे बात करने दे। पॉइंट रेज कर लीजिएगा, पॉइंट नोट कर ले, आप पॉइंट रेज कर लीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। 18वीं तरमीम के बाद सुबह हर लिहाज से खुद मुख्तार है तो जमील जिया साहब एटीपी का काम मेरी सुन ले। इस तरह से बात हो नहीं करने के मैं बहस क्या करूंगा? आपने गलत बोला ना, आपने आपके पास कोई पॉइंट है तो आप रेज कर लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ ग्राउंड पे जो है मीडिया हमारे आ जाए, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले के लिए तैयार। जमील साहब मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। पूरे क्या ये झूठ है? जमील साहब आप बात अगर सुन लें, क्या ये झूठ है? 18वीं तरमीम के बाद सूबे में सब कुछ पता है। 18वीं तरमीम का मुझे पता है, सब कुछ पता है। आप लोगों ने औरंगी के साथ जो नाजायज किया वो बताया। आपके इजहार साहब ने, देखिए मेरी बात सुनिए, आपके कहने से नहीं होगा। आपके इजहार साहब 5 साल जो है आपके चेयरमैन थे, उन्होंने क्या किया? पूरा पूरे प्रोग्राम में आपकी बात सुनी गई, उनको अपनी बात कह रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त कम है, मसाइल के हल के लिए, लेकिन वो गलत बात कह रहे हैं कि ये गलत बात कह रहे हैं। आज वो पहली दफा कराची का मेयर जियाला है, वो मांगे तांगे की हुकूमत से जैसे भी आया, लेकिन कराची का मेयर आज पीपल्स पार्टी का है। क्या ये झूठ है? मांगे तांगे से नहीं आए, हम आवाम की वोट से आए हैं। ये 2024 का जो इलेक्शन में मांगे तांगे जो एमएनए एमपी आप लोग आए हैं, जो आप लोग किस तरह आए, आप लोग को एक सीट भी नहीं मिला है माजरत के साथ। आपको एक सीट नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों को 2024 में मैं ये कहता हूँ आपको, इजाज साहब मेरी बात सुने मेरे मोहतरम, आपसे मैं कहता हूँ आप हल्फिया कुरान के हाथ में वो बोलेंगे आप कि आप लोग 2024 में अवाम की ताकत से अवाम ने रिजेक्ट किया। आप लोगों तो अवाम देखना नहीं चाहती है। नहीं माजरत के साथ हमारे मियां कराची हमारे जितने भी हैं, नहीं औरंगी उजाड़ दिया है बिल्कुल। आपने रोड का काम नहीं किया। अरे हमने, आप एक बात बताए, अभी मौजूदा मेरे बात सुने, मौजूदा अभी ग्रीन आइलैंड पार्क निशाने हैदर पे मैं बना रहा हूँ, वो लोगों ने देखा है। पूरा ग्रीन आइलैंड पार्क बना रहा हूँ, बच्चों के लिए स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनाया। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने तो बच्चों के हाथ में जो है हथियार पहुंचाया। माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें आप। एजाजुल हक साहब, आपको बात कहने का कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या बात कही। जमील साहब की ना बात समझ में आई, मतलब सिर्फ टाइम किल हो रहा है। एक अहम मौजू पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वक्त गुजारेंगे तो किसी को भी फायदा नहीं होगा इसका। एजाजुल हक साहब आप लाइन पर मौजूद हैं? वो चले गए, बात हो नहीं पाई। देखिए जमील साहब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब मैं आपको हकीकत ये बताऊंगा, सबसे एक मिनट, अब पहले आप मेरी बात सुने। देखिए ये सबसे बड़ा मसला है, हम जब किसी मौजू पे बात करने के लिए बैठते हैं ना तो हम दूसरे की बात सुनते नहीं हैं। अगर हम दूसरों की बात सुनेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तौर पे अपनी बात कह सकेंगे। देखिए आपको पूरा मौका दिया हमने कि आप अपनी बात कहें, अभी और टाइम था, लेकिन वो 5 मिनट उनकी बात भी नहीं हम कर पाए। माजर के साथ मेरी बात सुनिए। देखिए आप आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम के मसाइल के हवाले से आप बात कर रही थी, और हम जो ये 2 टाउन चेयरमैन और मेरे जो तीसरे टाउन चेयरमैन थे नवाज बुरोही साहब, हम लोग आवाम के मसाइल पे बात कर रहे थे। मेरे मलिक साहब ने भी कहा, लेकिन ये आने के बाद जो ये मांगे टांगे और ये वो, तो ये पूरी दुनिया को पता है, पूरे कराची को पता है कि 2024 में जो ये एमएनए एमपी जो ये आए हैं, इनको कौन लेकर आए। अच्छा अगर ये चीजें सबको अच्छा दूसरी बात है, मेरी बात सुने। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितने हमारे जो एंकर हैं, मीडिया चैनल हैं, आप औरंगी टाउन में जाएं। औरंगी टाउन में 35 सालों में इन्होंने जो है औरंगी को उजाड़ दिया है।
अभी 4 साल इनके 5 साल जो है इनके तकरीबन 4 साल जो है इजहार हक साहब जो इंतकाल कर गए हैं, इनके जो है टाउन चेयरमैन थे, वो रहते हुए बता दे कौन सा एक जगह बनाया औरंगी में। मैं तो बता रहा हूं, जब हम करते हैं अवाम के मसाइल की और मैं तो कहता हूँ आपको आवाम से, मेरी सिस्टर मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं कहता हूँ आप आवाम से, जमील साहब अब आप मुझे बताएं, वक्त बिल्कुल कम रह गया, मैं आपसे थोड़ा सा सख्त सवाल कर लूं, मुझे कोई एक मसला बता दें जो आपने अपने टेन्योर में हल कर लिया। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसला जो हमारे वहाँ पर जो बच्चों के लिए जो है कोई पार्क वगैरह नहीं था, स्पोर्ट कम्प्लेक्स नहीं था, मैंने एक स्पोर्ट कम्प्लेक्स किया और अंडर 19 जो हमारे बच्चा औरंगी का जो खेल रहा है अरसलान, वो जो वहाँ हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, यानी कि बाहर जो शहर में जाते थे 8,000 10,000 बच्चे, गरीब बच्चे जो फीस देते थे, वो मैं मुफ्त का करा रहा हूँ अपने जाती हैसियत से। अच्छी दूसरी बात आपको बताती हूँ, ग्रीन आइलैंड पार्क में बता, वो बच्चा जिसे साफ पानी मुयस्सर नहीं, वो बच्चा जिसके घर के आगे गटर बह रहा है, वो बच्चा जो गटर के ढक्कन ना होने की वजह से गटर में गिर रहा है, जो ना सेहतमंद है ना उसके पास सही तालीम है, अगर आप उसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दे भी देते हैं, वो उसके किस काम का है? पार्क बना भी देते हैं जब वो रोड नहीं है जिस पे वो चल के जाए, और उन पार्कों में ना वो माहौल है, गर्दो गुबार, ना प्लांटेशन है, ना। देखें जमील साहब, बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन सुनना चाहिए अपनी गलतियों पे बजाय पर्दा डालने के। अगर हम उस बात को सुनेंगे तो हम मजीद बेहतर काम कर सकेंगे। देखिए मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल, आप अगर मुझे गलत जो है निशानदेही करेंगी, मैं उसको अपना तस्लीम करूंगा कि मेरी गलती है, लेकिन मेरे और मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई गलती नहीं। आप 1 मिनट में खत्म कीजिए, उसके बाद मैं आपको मलिक बता साहब से रहा 1 हूँ, मिनट का। 1996 को 4 जुलाई को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो शहीद जो है, और हमारे ये मरहूम जो है अब्दुल्ला शाह साहब उस टाइम के वज़ीर आलत है, औरंगी टाउन जर्मन स्कूल पे आके जो है पंपिंग स्टेशन का 13 करोड़ की लागत से बनाया उन्होंने। वहां पर औरंगी टाउन में गोंगा बहरा स्कूल जो है वो मोहतरमा के हाथ का जो है वो जो है बना हुआ है। उसी तरह 12 नंबर पे कॉलेज जो बनाया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। आज मैं जो बता रहा हूँ आपको, मैं मोहम्मद जमील से, मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जनरल सेक्रेटरी टाउन चेयरमैन, ग्रीन आइलैंड पार्क निशान हैदर से साबरी चौक जो वहाँ के आवाम से जाके पूछे, वहाँ लोग जो है, मैंने अभी कल ही पता किया कि कोई खस्ता हाल अगर मकान में खरीदना चाहे कोई हमारे जानने वाले, उन्होंने बोला कोई नहीं देने वाले, बोले आज तक ये 40 सालों में नहीं हुआ था जो आपने काम किया। मैं तो आपको दावत देता हूँ कि आप आवाम से वहाँ बिल्कुल विजिट करेंगे। जी मलिक आरिफ अवान साहब, अब 1 मिनट आपके पास भी, जल्दी से। अच्छा, मैं देखें, मैं इस टाइम अमीनुल हक साहब अब जब MNA अभी मुंतखब हुए, उन्होंने पहली दफ़ा मुझसे, पहले भी हमारे MNA थे वो, तो अब इस दफ़ा तो मेरे साथ इस दफ़ा उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हमारे साहब मुझे बड़ी स्कीम दे, मैं कोई बड़ा काम कर सकूं। मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझसे पूछा और मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मैं सारे स्टेक होल्डर जितनी भी पार्टी, मैं कहता हूँ किसी पार्टी से भी ताल्लुक है, चाहे किसी का पीपल्स पार्टी से, किसी का जमात इस्लामी से, किसी का MQM से, किसी भी पार्टी सेक्टर से, मैं कहता हूँ कराची के लिए कुछ करे। मैं मेयर साहब के बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझसे वादे किए, लेकिन अब तक उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन किए मैं। लेकिन मुझे अल्लाह से बड़ा यकीन है कि मेयर साहब इंशाल्लाह एक दिन मेरा काम कर देंगे। तो मैं अमीनुल हक साहब ने भी मुझसे वादा कुछ 2-4 किए हैं, अपने मेरे लिए नहीं किए, उसने इलाके के लिए किए, अपने हल्के के लिए। तो मैं कहता अल्लाह उनको भी तौफीक दे, वो काम करे, मुझे खुशी होगी वो काम करे इलाके और औरंगी के लिए। मलिक आरिफ अवान साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। हाजी जमील ज़िया साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। हाजी नवाज बरोही साहब आपके ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और बहुत शुक्रिया सैयद एजाजुल हक साहब कि आपने अपने प्रोग्राम बिजी शेड्यूल में से हमारे प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। ज़्यादा बात हम आपकी सुन नहीं पाए, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आपकी भी बात सुनेंगे। नाज़रीन, ये सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जब तक हम दूसरे की बात पूरी सुनेंगे नहीं, तब तक हम अपनी बात कह नहीं पाएंगे। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।